کہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 148 ملتان میں ضمن انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے۔ یوسف رضا گیلانی کی جانب سے خالی کی گئے نشست پر علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور میں مقابلہ جاری ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں رانا فاروق سے جانیں گے۔ رانا فاروق، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کیا لوگ ووٹ کاسٹ کرنے نکلے؟ جی بالکل، صورتحال یہ ہے کہ لوگ گھروں سے نکل کر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کا رخ کر رہے ہیں۔ پرامن طریقے سے پولنگ کا عمل جاری ہے، لیکن یہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر گہما گہمی نہ ہونے کے برابر ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے، سنڈے ہے، تو لوگ دن 12 یا 1 بجے کے بعد گھروں سے باہر نکلیں گے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اب تک یہ صورتحال دیکھیں، جتنے ووٹرز آئے ہیں ان میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، خاص طور پر بزرگ افراد بھی ہیں جو کہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کا رخ کر رہے ہیں۔ اس حلقے کی بات کی تو اس حلقے کی آبادی 9 لاکھ سے زائد ہے، 4,44,000 سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ ہیں، جبکہ اس میں سے 3,30,000 ووٹر جو وہ ہیں جو خواتین ہیں، اس کے علاوہ 1.25 لاکھ کے قریب خواتین ووٹرز ہیں۔ اور اگر سیکورٹی کی بات کی جائے تو سیکورٹی کی بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ 3800 سے زائد ابھی یہاں پر جو پولیس کے اہلکار ہیں، افسران ہیں، وہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کا رخ کر رہے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ دن 2 بجے کے بعد جو ٹرن آؤٹ ہے اس میں اضافہ دکھائی دے گا۔ ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ اب نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے۔ آج اگر موسم کی صورتحال کی بات کی جائے تو موسم بھی شدید گرم ہے، حبس ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں لیکن حبس ہے، جس کے باعث امید کی جا رہی ہے کہ شام کے 3 بجے کے بعد موسم قدرے بہتر ہوگا، اور امید کی جا رہی ہے کہ 3 بجے کے بعد ہی ووٹرز بھی بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکلیں گے۔ جی ٹھیک ہے رانا فاروق، اس حوالے سے آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے۔ فی الوقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 148 ملتان میں ضمن انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے۔ یوسف رضا گیلانی کی جانب سے خالی کی گئے نشست پر علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور میں مقابلہ جاری ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں رانا فاروق سے جانیں گے۔ رانا فاروق، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کیا لوگ ووٹ کاسٹ کرنے نکلے؟ جی بالکل، صورتحال یہ ہے کہ لوگ گھروں سے نکل کر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کا رخ کر رہے ہیں۔ پرامن طریقے سے پولنگ کا عمل جاری ہے، لیکن یہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر گہما گہمی نہ ہونے کے برابر ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے، سنڈے ہے، تو لوگ دن 12 یا 1 بجے کے بعد گھروں سے باہر نکلیں گے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اب تک یہ صورتحال دیکھیں، جتنے ووٹرز آئے ہیں ان میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، خاص طور پر بزرگ افراد بھی ہیں جو کہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کا رخ کر رہے ہیں۔ اس حلقے کی بات کی جائے تو اس حلقے کی آبادی 9 لاکھ سے زائد ہے، 4,44,000 سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ ہیں، جبکہ اس میں سے 3,30,000 ووٹر جو وہ ہیں جو خواتین ہیں، اس کے علاوہ 1.25 لاکھ کے قریب خواتین ووٹرز ہیں۔ اور اگر سیکورٹی کی بات کی جائے تو سیکورٹی کی بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ 3800 سے زائد ابھی یہاں پر جو پولیس کے اہلکار ہیں، افسران ہیں، وہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کا رخ کر رہے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ دن 2 بجے کے بعد جو ٹرن آؤٹ ہے اس میں اضافہ دکھائی دے گا۔ ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ اب نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے۔ آج اگر موسم کی صورتحال کی بات کی جائے تو موسم بھی شدید گرم ہے، حبس ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں لیکن حبس ہے، جس کے باعث امید کی جا رہی ہے کہ شام کے 3 بجے کے بعد موسم قدرے بہتر ہوگا، اور امید کی جا رہی ہے کہ 3 بجے کے بعد ہی ووٹرز بھی بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکلیں گے۔ جی ٹھیک ہے رانا فاروق، اس حوالے سے آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے۔ فی الوقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ امریکی قونصل جنرل اینڈریو جیمز کی سربراہی میں امریکی سفارت خانے کا وفد راولپنڈی ریلوے اسٹیشن سے اٹک روانہ ہو گیا ہے۔ بابر ملک سے مزید تفصیلات لے لیتے ہیں۔ بابر، بتائیے گا۔ انتظامات کیے گئے تھے۔ امریکی سفارت خانے کی قونصل جنرل اینڈریو جیمز سمیت 25 رکنی یہ وفد تھا۔ اس وقت کا یہاں ریلوے اسٹیشن میں آنے کا مقصد امریکی وفد بذریعہ سفاری ٹورزم ٹرین جو سیاحت کے فروغ کے لیے چلائی گئی ہے اس سے راولپنڈی سے اٹک روانہ ہوا ہے، اور اٹک کے مختلف مقامات کا یہ سیاحتی مقامات کا دورہ بھی کرے گا، ہسٹوریکل پلیسز کا بھی دورہ کرے گا، اور اس وقت کی روانگی کے موقع پر یہاں راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی بابر ملک اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کے علاقے خیابان بخاری میں 16 سالہ ملازمہ کی مبینہ خودکشی۔
लवाहिकीन ने काला पुल पर एहतजाज किया। तफसीलात क्या है जानेंगे अफजल खान से। अफजल बताएगा क्या मुतालबा सामने रखे गए? जी देखिए, ये जो वर्षा है उनकी जानिब से काला पुल पर एहतजाज किया जा रहा था, जिसकी वजह से रोड बंद हो गया था और ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई थी। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इन्होंने साथ साथ मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस से इस वाक़े के अंदर मुलविस जो मुल्जिमान हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है। कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस इसे मुसलसल जो है खुदकुशी करार देने की कोशिश कर रही है। मुजाहिरीन इस वक्त एहतजाज करते हुए आगे बढ़े हैं और इनका कहना है कि ये गवर्नर हाउस जाएंगे, जिसके बाद पुलिस की भी भारी नफरी पहुंच गई है ताकि इन्हें रोका जा सके। जबकि इससे एहतजाज के बाइस इस मुकाम पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई है और चारों जानिब जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। जी ठीक है, अफजल खान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर है कराची से, जिसके जिला केमाड़ी पुलिस ने छालिया स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। स्मगलर समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके छालिया की बड़ी मिकदार बरामद कर ली गई है। इस कार्रवाई की मजीद तफसीलात लेंगे अफजल खान से। जी अफजल। देखिए, केमाड़ी पुलिस ने सीमेंट ले जाने की आड़ में छालिया स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 3 टन छालिया की खेप पकड़ ली है। पुलिस हुकाम के मुताबिक 3 मुल्जिमान डंपर में सीमेंट के थैलों के अंदर छालिया के थैले छुपाकर ले जाना चाहते थे। पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए डंपर को तहवील में ले लिया और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद जो स्मगलर है उसने पुलिस से छालिया छोड़ने के लिए राब्ता किया और 16 लाख रुपए रिश्वत की पेशकश भी की। पुलिस ने रिश्वत देने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार करके 16 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि जब्त की गई रकम और पकड़ी गई छालिया और जो 4 मुलजिमान हैं इनके हवाले से बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद कानूनी चाराजोई के लिए पकड़े गए माल को और मुलजिमान को कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा। जी अफजल खान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएं कि गंदम स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे नईम अशरफ भट्ट से। नईम बताइएगा। जी बिल्कुल, बिलाहर दावे तो बहुत लोग कर रहे थे, लेकिन अजहर सदीक जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने नैब में बाकायदा तहरीरी तौर पर गंदम स्कैंडल की शिकायत जो है वो दर्ज करवा दी है और इसको में शिकायत का बड़ा हिस्सा जो है वो ARY न्यूज़ के जो खबरें हैं उसके हवाले दिए गए हैं। खास तौर पर जो साबिक निगरान फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर थे डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला, उनका जो इंटरव्यू है वाहिद ARY के साथ, उसको बहुत बड़ा हवाला बनाया गया है और कहा गया है कि जब मिनिस्टर जो थे कंसर्न वो खुद बता रहे हैं कि गंदम वाफर मिकदार में मौजूद थी, इसके बावजूद जो है वो इंपोर्ट की गई और उन्होंने मना भी किया था कि इसको सरकारी तौर पर इंपोर्ट ना किया जाए। और उसमें कहा गया है कि डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला ने ये भी बताया कि उनके आने से पहले समरी मूव कर दी गई, लेकिन जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मना किया और फिर उनके मना करने के बाद ECC ने मामला जो है वो निजी सेक्टर को देने का फैसला कर लिया, क्योंकि निजी सेक्टर में कौसर अब्दुल्ला की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। फिर वो उसमें फाइनेंस उस वक्त के डिपार्टमेंट और कॉमर्स जो है उनका सारा रोल था और बाकी काबीना का। इसमें ये कहा गया है कि जब 40 लाख टन मैट्रिक टन से ज्यादा गंदम मौजूद थी, ये दस्तावेजात बताते हैं और कौसर अब्दुल्ला ने भी बताया, तो फिर 35 लाख मैट्रिक टन गंदम क्यों इंपोर्ट की गई। फिर इसमें ये हवाला भी दिया गया डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला का कि उन्होंने वीट बोर्ड के इजलास में भी कहा था कि एक खास डेट तक आप अगर मंगवा भी रहे हैं उससे आगे ना जाएं क्योंकि हमारी गंदम आ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वो भी होता रहा। इसकी एक कापी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी दी गई है। अब नैब को इस पर एक्शन करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो ये मामला अदालत में जाएगा। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। पंजाब में 21 मई से 27 मई तक हीट वेव के शदीद खतरात हैं। PDM पंजाब का कहना है बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम करने की हिदायत कर दी गई है। DG PDMA का कहना है कि तमाम महकमे बाहमी ताउन से हीट वेव का मुकाबला कर सकते हैं। गर्मी में इजाफा क्या हुआ, लीमू भी गरीबों की पहुंच से दूर हो गया। 500 से 600 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला लीमू सक्खर के बाजारों में 1000 रुपए फी किलो पर फरोख्त हो रहा है। जिला इंतजामिया बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांजेब वसीर।
गर्मियों का आसान और सस्ता तोड़ लीमू अब महंगा हो गया। महंगाई मौसम गर्मा की जरूरियात को भी निगलने लगी। लीमू के दाम बेलगाम हो गए। लोग गर्म हवाओं और तपती धूप से महफूज रहने के लिए सस्ते जरिए से भी महरूम होने लगे। आज हम आए लीमू लेने के लिए यहाँ पे रेडी वाले के पास, तो सुनने में आया कि 1000 रुपए किलो लीमू बढ़ गया है। हम तो 20 रुपए के लेने आए थे कि 2-3 दाने मिल जाएंगे। गर्मियों की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लीमू की कीमतें लगभग बड़े गोश्त के बराबर हो गयी। बेखबर जिले इंतजामिया की नाअहली की वजह से आवाम महंगाई से रुल गए। नींबू अब इस टाइम 1000 रुपए किलो चल रहा है। गरीब आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हो गया है। हम हुकूमत से अपील करते हैं, खुदारा नींबू ये तो गरीब की पहुंच तक होनी चाहिए। शहरियों का कहना है कि जहां मजदूर की दिहाड़ी 800 रुपए हो और लीमू 1000 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता हो, तो वहां अवाम क्या खरीदेगी। 500 रुपए फी किलो हिसाब में फरोख्त होने वाले नींबू मोतियों की कीमतों की तरह फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ जहांज़ बसीर, ARY न्यूज़ सक्खर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ मौसम की बात करते हैं तो पंजाब और सिंध के बेशतर इलाके आज सुबह से ही शदीद गर्मी की लपेट में हैं। जैकबाबाद, लाड़काना, नवाबशाह और कसूर में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। दादू, डीजी खान, बहावलपुर में 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और साहिवाल में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर जाने की पेशगोई की गई है। कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, लेकिन शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात ने पंजाब और सिंध में 21 मई से 27 मई के दौरान शदीद गर्मी की पेशगोई की है। दर्जा हरारत में 4 से 8 डिग्री इजाफा मुतवक्के है। और दादू में भी दिन ब दिन बढ़ती गर्मी के बायस डायरिया और गैस्ट्रो ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली है। गुज़श्ता 5 रोज़ में सिविल अस्पताल दादू में गैस्ट्रो के 500 से ज़ायद मरीज दाखिल हो चुके हैं। सिविल अस्पताल में एक ही रोज़ में 100 से ज़ायद मरीज दाखिल हुए हैं। दादू से देखिए वाली मोहम्मद बलोच की रिपोर्ट। के बेशतर इलाकों की तरह दादू में भी दिन ब दिन बढ़ती हुई गर्मी के बायस डायरिया और गैस्ट्रो ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली है। गुज़श्ता 5 रोज में सिविल अस्पताल दादू में 500 से जायद गैस्ट्रो और डायरिया के मरीज दाखिल हो चुके हैं। एक ही रोज में 100 से जायद मरीज सिविल अस्पताल दाखिल हो चुके हैं। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिविल सर्जन सिविल अस्पताल डॉक्टर अमजद मस्तोई का कहना है कि गर्मी में इजाफे से गैस्ट्रो और डायरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। शहरी गर्मी से बचाव की तदाबीर इख्तियार करें। हफ्ते से जो ना वो डायरिया के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इसलिए कि गर्मी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, तो लोगों को ये चाहिए कि वो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। जिले इंतजामिया को चाहिए कि हीट स्ट्रोक सेंटर कायम करे ताकि डायरिया और गैस्ट्रो की वबा पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन राजा खान के साथ वली मोहम्मद बलोच, ARY न्यूज़ दादू। मौसमी गर्मी के बाद बात कर लेते हैं कुछ सियासी गर्मा गर्मी की। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात क्या है जानेंगे जहांगीर खान से। जी जहांगीर। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के बावसूख ज़राए ने तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की तंजीम अदम एतमाद लाने की ख्वाहिशमंद थी और इस हवाले से इन हाउस तब्दीली के तमाम होमवर्क भी मुकम्मल था। ये प्लानिंग गुज़श्ता कई माह से जारी थी। ज़राए बता रहे हैं कि गुज़श्ता चंद रोज़ कबल पीपल्स पार्टी की क़यादत को आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ पेश की, जिसे क़यादत ने यकसर मुस्तरद कर दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की तंजीम इन हाउस तब्दीली के मामले पर भी तकसीम थी। इन हाउस तब्दीली के जो हामी रहनुमा है वो क़यादत को अपने मौक़िफ़ पर कायल करने में नाकाम रहे, जबकि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के बाद रहनुमा जो तरीक़े एतमाद लाने के मुखालिफ थे वो अपना मौक़िफ़ पेश करने में कामयाबी उनको हासिल हुई। ज़रा के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पार्टी को वाज़ेह पैगाम दिया है कि मौजूदा हालात में आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली जो है तो दुरुस्त नहीं है, लिहाजा आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसको मुस्तहकम किया जाए, भरपूर साथ दिया जाए। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए अहम शाहराहों पर चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। जी अपडेट कीजिए। जी हाँ, पंजाब हुकूमत की हदायत पर ये इकदाम किए गए हैं। सेक्रेटरी फूड पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा से मुल्लिका अहम शराहों पर चेक पोस्ट कायम करने की हदायत जारी की है। किसानों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इनकी जो मुकर्ररा कीमत है 3900 रुपये फी मन वो दी जा रही है, जबकि आम ओपन मार्केट में गंदम जो है 2800 से 3000 रुपये में फरोख्त हो रही है। किसानों को गंदम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फरोख्त करने में
फायदा है, जबकि ओपन मार्केट में बेचने में इनको 1,000 रुपया पर मन नुकसान हो रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बरक्स पंजाब हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कर दी है। गंदम के हजारों ट्रक जो है, सैकड़ों ट्रक जो है वो रवाना भी हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा, और इस पाबंदी पर अमल दरामद अब से शुरू करवाने के लिए हिदायत जारी की गई है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया बाबर। और पेशावर में गवर्नमेंट हाई स्कूल गरीबाबाद में टिकटॉक की वीडियो ख़राब करने पर उस्ताद का तलबा पर मुबैना तशद्दुद। जमात चहारम के 6 तालिब इल्म को उस्ताद ने डंडे मारकर शदीद जख्मी कर दिया। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अदनान तारिक से। अदनान, क्या मामला ये? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेशावर पुलिस स्टेशन ताकाल की हदूद में गवर्नमेंट हाई स्कूल गरीबाबाद में टिकटॉक की वीडियो ख़राब करने पर उस्ताद का तलबा पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या जो है वो सामने आया है, जिसकी रिपोर्ट जो है वो रोज़नामा से रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वालिदैन के कहने पर जो है वो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके और खैबर टीचिंग हॉस्पिटल को मरासला अरसाल कर दिया। अब अरसाल की मरासले की बुनियाद पर जो है वो FIR दर्ज की जाएगी। चहारम जमात के 6 तालिबों को उस्ताद ने डंडों से मारा और तशद्दुद किया, जिससे वो जख्मी हो गए थे। उस्ताद टिकटॉक में वीडियो बना रहा था। वालिदैन के मुताबिक जो बच्चों ने बयान दिया, वीडियो ख़राब होने को उस्ताद ने तशद्दुद किया। जी ठीक है, अदनान तारिक इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और पेशावर में गवर्नमेंट हाई स्कूल गरीबाबाद में टिकटॉक की वीडियो ख़राब करने पर उस्ताद का तलबा पर मुबैना तशद्दुद। जमात चहारम के 6 तालिब इल्म को उस्ताद ने डंडे मारकर शदीद जख्मी कर दिया। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अदनान तारिक से। अदनान, क्या मामला ये? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेशावर पुलिस स्टेशन ताकाल की हदूद में गवर्नमेंट हाई स्कूल गरीबाबाद में टिकटॉक की वीडियो ख़राब करने पर उस्ताद का तलबा पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या जो है वो सामने आया है, जिसकी रिपोर्ट जो है वो रोज़नामा से रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वालिदैन के कहने पर जो है वो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके और खैबर टीचिंग हॉस्पिटल को मरासला अरसाल कर दिया। अब अरसाल की मरासले की बुनियाद पर जो है वो FIR दर्ज की जाएगी। चहारम जमात के 6 तालिबों को उस्ताद ने डंडों से मारा और तशद्दुद किया, जिससे वो जख्मी हो गए थे। उस्ताद टिकटॉक में वीडियो बना रहा था। वालिदैन के मुताबिक जो बच्चों ने बयान दिया, वीडियो ख़राब होने को उस्ताद ने तशद्दुद किया। जी ठीक है, अदनान तारिक इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मास्टर राशिद नसीम का एक और कारनामा, टारगेट पर कोहनी के वार पर भारतीय हरीफ को पीछे छोड़ दिया। राशिद ने 3 मिनट में 882 वार करके रिकॉर्ड तोड़ा। शर्मा ने 820 वार किए थे। राशिद ने माथे से पेंसिल तोड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। 1 मिनट में 119 पेंसिलें तोड़ी। अमरीकी खिलाड़ी सिर्फ 58 पेंसिल तोड़ सके। कौमी एथलीट ने सबसे ज्यादा यार्ड स्टिक तोड़ने का भी कारनामा अंजाम दिया। तमाम रिकॉर्ड्स की वीडियो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेजी जाएंगी। I said,